ये बना Yes. गुड कुछ नहीं है हाँ वही तो वही Take it. And students, you haven't yet submitted the definite article based exercise. This time you take the notebook. Please do that. I have put it up. ठीक है? Do the pending work that has been allotted to you, given to you. Your empty 4 syllabus would remain the same as it was मैम वीडियो 35 मिनट का है ठीक है पढ़ेंगे 35 मिनट तो अभी अभी पॉज कर दो एक्सेल Okay, so the author, the writer, is putting up a question for all the readers of the poem. Can there be a forest without trees? Obviously, no. है ना? For a forest to exist, there has to be Anisharya. There has to be trees for the forest to exist. Where are the trees in this poem and where do they go? है ना? यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे है ना इस पोएम में पेड़ पौधे हैं कहाँ और वो कहाँ चले गए पहले शायद भागलपुर की बात कर लेते हैं तो जितना ये आदमपुर वाला एरिया था ना हनुमान नगर वाला एरिया था पूरा जंगल हुआ करता था नॉट मेरे जन्म के टाइम नहीं ऑब्वियसली मेरे परदादा वरदादा के टाइम की बात है जो स्टोरीज सुनने में आती हैं कि वो एरिया ज्यादा वो नहीं था क्या कह सकते हैं वहां सेटलमेंट्स नहीं थे ठीक है अब तो वहां पे लोकेलिटी बहुत टाइम से बहुत ही अच्छी वो वीआईपी लोकेलिटी में काउंट होता है आदमपुर का वो जितना एरिया है ना सो कहाँ पे मेरा कॉलोनी बोला जाता है पहले आम का हाँ ऑब्वियसली ये सारा जो एरिया था ना काफी ज्यादा ग्रीन था लेकिन जब लोग यहाँ आके बसने लग गए तो फिर तो कटिंग्स होंगे ना ट्रीज के एंड वो कंटिन्यूअसली हो ही रहा है ठीक है The trees inside are moving out into the forest. Please read this line very carefully. Poet यहाँ बोल रहे the trees inside are moving out. What does that mean? Trees कहाँ inside में है जो कि वो forest में move out कर रहे हैं? This line is a bit of you can say confusing, है ना? The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. That means that the forest was not actually a forest at all. Right? A forest without trees. So isn't it ironical or paradoxical in a way? हाँ बोलिए आप नहीं जाइएगा ठीक है आप रुकिए तुम रुको The forest that was empty, yes. So यहाँ पे actually जो ये forest था ना, it was barren. ठीक है? This forest was not actually a forest. It didn't have any trees. है ना and neither the insects, birds or any species could shelter in that could gain shelter in that forest because obviously no trees, right? So in the first stanza that's what the poet is saying, Nikita, don't lean on the door, sit straight. Okay, so the trees inside are moving out into the forest. So now what's happening is that maybe the trees are getting planted in that forest. Okay,
This poem has certain environmental concern, right? Some concern related to environment and your trees, basically, right? Save trees, grow trees, plant trees each year, and the people who are plant lovers, right, or the people who love I don't feel like today's generation has realized the importance of trees, for sure, right? Everybody knows the importance of trees and what havoc our actions have brought into the modern time, है ना? With the climatic changes, right? तुम लोग का गॉसिप हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो प्लीज डू नॉट डू दैट. Alright. Rather sit in the class and pay attention on what's going on in the class, or do not talk amongst yourselves. Okay? And sitting on the first desk, you're doing that. Bench for that. Another first bench. Okay, sorry. So the trees inside are moving out in the forest that was empty all these days, where no bird could sit because there were no boughs to sit on, right? No insect hide because there were no insects hide where? Where do the insects hide? Maybe the bushes, है ना? There were no झाड़ियाँ भी नहीं थी, है ना? Bushes भी नहीं थे. और टहनियाँ भी नहीं थी जहाँ पे पेड़ पे चिड़ियाँ बैठती, है ना? कोई भी उनके लिए जो एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. All night the roots work. पूरी रात भर the roots, the trees का जो है ना, वो पूरी रात वो क्या करता है? It works. ट्री का जो पूरा फंक्शन तुमने पढ़ते हो, स्टोमेटा पढ़ते हो, जाइलम, फ्लोएम और उसके जितने भी पूरे पार्ट्स पढ़ते हो, है ना? जो पूरा प्रोसेस पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दैट, कैसे ब्रेक डाउन होता है, ट्रांसपिरेशन, ये वो, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना हर चीज़. इट्स नॉट सो वेरी सिंपल, है ना? बट सनलाइट को लिया एंड फिर वो कैसे पूरा, जैसे ह्यूमन बॉडी जितना कॉम्प्लेक्स है उतना शायद कहीं ना कहीं प्लांट का भी जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? There are so many various types of plants and हर का मतलब हर कोई प्लांट हर जगह पे नहीं उगता, है ना? They have a specific region where they grow, right? Can you grow a pine tree in Bihar? No, है ना? देवदार बिहार में नहीं होगा, है ना? Similarly, you cannot grow maize in Kashmir, है ना? तो just like that, the forest too, ऐसा नहीं है कि अब evergreen forest के जो plant है वो deciduous forest में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, है ना? So जितने भी ये timber है, जो भी timber तुम पढ़ते हो, साल, teak and whatever, rosewood, sandalwood, है ना? So many timbers, you cannot find the same one in the same various forest. That will differ definitely, right? So यहाँ पे बोलते हैं that all night the roots work, है ना? And what's the roots work? To seek minerals from the soil. So don't they work in the daytime? They do work, right? So actually why night का mentioning है? क्योंकि रात के समय में photosynthesis का जो काम है वो नहीं हो रहा होता है, ठीक है? रात के समय में photosynthesis का काम नहीं हो रहा होता है, दिन के समय में हो रहा होता है, ठीक है? तो उस समय में तो तुमको सनलाइट मिल रहा है और लोग पानी दे रहे हैं, है ना? पानी दे रहे हैं, या फिर पानी नहीं भी तो कह सकते हो कि वो मिनरल्स को ही ले रहा है जमीन से, है ना? एक वाटर टेबल भी तो है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पानी हम दे रहे हैं, वही मे भी हो सकता है बारिश पड़ा, एक वाटर टेबल भी एक सर्टेन तो मेंटेन्ड है ना, तो वो भी तो वो रूट उसको लेता ही रहता है, ठीक है? तो वो चीज है. तो दिन के वक्त का एक काम है कि तुम्हारा वो फूड प्रोडक्शन हो गया, है ना? जो सीड वगैरह या फिर जितना भी तुम्हारा पॉलिनेशन वगैरह है, पॉलिनेशन रात के टाइम में होगा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, है ना? तो रात के टाइम में रूट का काम है कि ठीक है, प्लांट इज गिवन आउट CO2 at the night time, है ना? Most of the plants are giving CO2 and we are given out CO2 too. Therefore it is asked that कि रात के समय में blankets को मुंह पे डाल के मत सोया करो. That would be suffocative to you, है ना? एक scientific reason है कि हम क्यों नहीं बोलते हैं कि चादर को, या फिर अभी ठंड का टाइम आ रहा है, कोई लोग को पसंद होता है अपने मुंह के ऊपर रजाई डाल लेते हैं, फिर मतलब अंदर में सो जाते हैं. हमको कंफर्टेबल है, सांस लेने में दिक्कत होती है और करना भी नहीं चाहिए, और जो मतलब मना भी करना चाहिए. भले नींद किसी किसी को बहुत अच्छी आ जाती है उसमें, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे बॉडी के लिए, राइट? सो ऑल नाइट द roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor,
ठीक है। तो देखते हैं ना कोई कोई पुराने हवेलियों में या पुराने घरों में जो पीपल के पौधे है ना तोड़ के ऐसे टेरेस से निकल के आते हैं, है ना। सिमिलरली हाँ बनियान ट्री, हाँ बनियान, बड़गद, बड़गद का पेड़ हो गया तुम्हारा, फिर और दूसरा पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, और बहुत सारा उग जाता है, ठीक है। तुम अनार वनार का भी देखोगे कि उग जाएगा, बीज कहीं डल गया ना, आम का पेड़ भी निकल आता है छत्ते वत्ते में से, ठीक है। सो दैट क्यों क्रैक में है, क्यों? क्योंकि क्रैक में ना वो सारे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। एयर तो मिल ही रहा है, वो सीमेंट है ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं बारिश वारिश पड़ के वो काई वाई जम जाता है एंड फिर वो मिट्टी जैसा ही काम करने लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना वो उसका जो उसको एटमॉस्फेयर चाहिए ग्रोथ के लिए वो उसको वहां मिल जा रहा है, जहां मिल रहा है उसके सीड है या किसी भी वजह से वो वहां। ऐसे तो बोलोगे कि तुम पीपल कैसे उग जाता है यार, है ना। तो पीपल क्या क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है या सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, चिड़िया आगे गिरा दी पीपल का कुछ ऐसा कि वहां पे उग गया वैसा कुछ, ठीक है। कहीं ना कहीं कह सकते हो, है ना, कि चिड़िया एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का भी रोल रहता है इसमें, ठीक है। So to disengage themselves from the cracks in the veranda floor, disengage मतलब वो they want to get loosen themselves from the veranda floor. They want to like cut themselves off, है ना, not grow in that environment, right? So trees are trying to ऐसे कह सकते हो कि तुमने वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है प्लांट्स के लिए खुद से करना कि उनको हम जमीन में लगाएं वो खुद से उखड़ने का कोशिश करने लगे, नहीं। बट यहाँ पे पोएट ऐसा मेंशन कर रहे हैं दैट ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। दैट मीन्स दे आर कमिंग आउट, है ना। रूट्स ऐसे क्रैक में से निकल रहे होते हैं ना बाहर की तरफ। सो दैट इज व्हाट पोएट इज सेइंग कि रूट्स आर डिसएंगेजिंग एंड रात भर काम कर रहे हैं, जद्दोजहद है, कसमकस है क्या करने का, बाहर निकलने का। ऑलराइट, द लीव्स strain toward the glass. Okay, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. Now, what is the comparison being here? The comparison is being established between a tree and a patient. A patient who is yes, the first discharge है ना, कोई सपोज आईसीयू में भर्ती है ना, और उसको अभी डॉक्टर बोला कि आप ठीक है, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। वैसी हालत यहाँ किसकी हो रखी है, पेड़ की। तो जब कोई आईसीयू से छूटेगा तो बहुत खुश होगा ना कि भैया हॉस्पिटल से छुटकारा मिला मेरे को, है ना। तो यहाँ बोलते हैं leaves are straining towards the glass, maybe that building है ना has glass ceilings, so the windows, है ना। तो वहां से the leaves strain towards the glass, small twigs, है ना। twigs क्या, जो चिड़िया लोग ऐसे चुन चुन के लाती है ना घोंसले बनाने के लिए, similar twigs stiff with exertion यानी कि काफी प्रेशर लग रहा है ना, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, स्टिफ हो गया। स्टिफ होना मतलब कोई चीज कड़ा हो जाना, हार्ड हो जाना, ठीक है। सो दीज ट्विग्स आर स्टिफ विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, यानी कि जो पेड़ के जो तने होते हैं ना, टहनियां और तने, है ना। तना अलग चीज होता है एंड टहनियां अलग चीज होती हैं, ठीक है। let me draw maybe a tree. Now we have now these are your bows, है ना। या तुम इसको this is your trunk, है ना। now these are your twigs, है ना, right, these are your twigs. Even इसमें जो छोटे छोटे रहते हैं ना, those are your twigs, right. तना ये हुआ, है ना। हाँ ये टहनियां,
ये टहनियां छोटी छोटी टहनियां, मेन टहनी से ये छोटी छोटी टहनियां क्या निकली है। जैसे हम लोग न्यूरॉन का पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर, डेंड्राइट एंड डेंड्रॉन, सिमिलर थिंग इज लाइक ट्री भी वैसा ही है। ये इसके नर्व्स हैं जो कि बहुत सारे ऐसे ऐसे इनके है ना, और ये मेन हम लोग का तना है, ठीक है। सो अबे यार यहाँ पे बोलते हैं दैट स्मॉल ट्विग्स टिप विद एक्सर्शन, और एक्सर्शन कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, ठीक है। दिस इज पुटिंग द एक्सर्शन ऑन द ट्विग्स and because of that the twigs have become to apply the pressure on something, है ना। exertion means to apply pressure on anything, okay। So over here small twigs stiff with exertion, long cramped bows, cramping what, cramps आते तो हम बोलते कि यार मोच आ गई, है ना। क्रैम्प आने को क्या बोलते कि यार मेरे को मोच आ गई है ना, तो मेरे को हम क्या लगाते, क्रेप बैंडेज लगाते हैं, है ना, लगाते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बोस थे ना बेचारे, इनको क्रैम्प आ गए थे, इनको क्या आ गई थी, मोच आ गई थी, ठीक है। शफलिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे ऐसे शफल कर रहे थे, है ना, तो कैसे आ गई थी, छत के नीचे जो दबे हुए है ना उसकी वजह से उनको मोच आ गई है। मोच कैसे आती है, कहीं चलते चलते शायद पैर ऐसे करके हो गया, टर्न हो गया, है ना, मोच आ गई, है ना। कोई जबरदस्ती चढ़ भी जाए, है ना, कोई दोस्त आके एक लात मार दे पैर में, तो भी कुछ हो सकता है ऐसा कि क्रैम्प आ गया, है ना। या कहीं से गिर गए, है ना, अचानक बाथरूम में पता चला गिर गए, ठीक है, तो मोच आ गई, अब तो गए, है ना। सो सिमिलर थे। वाई कभी नहीं गिरे हो तो बाथरूम में कौन गिरता है? अच्छा, कभी बूढ़े लोग गिरते हैं ना, पता है ना, बुजुर्ग लोग गिरते हैं ना। सो उससे कभी साबुन लगा लेना अच्छे से ना, और टाइल्स पे कभी गिरने का कभी ना कभी तो गिरोगी पक्का। ये शराब लग रहा है नहीं, एडी में लगाना फिर तो पक्का, और डांस करना पक्का गिरना है फिर तो। हाँ, कैसे गिरेगा, किधर से गिरेगा, क्या फटेगा, कुछ ठीक है। सो ओके, सो the lips strain towards the glass, straining that means कि उसके पूरे ग्रोथ को क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ना। the growth of the tree एक्टिवेट नहीं किया गया है, हाँ, एक्यूमुलेट नहीं किया गया है, उसके ग्रोथ को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ना। नाउ इट कैन नॉट ग्रो फर्दर, एकदम उसके बोज भी क्रैम्प्ड है, ट्विग्स भी जो है ना काफी ज्यादा परेशान है ना। रूट्स भी क्या करना चाह रहे हैं, दीवार से निकल के आना चाह रहे हैं। मतलब वो एक दिखा रहा है कि कोई अगर पेड़ कोई घर में निकलता है तो वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं है ना। तुम है ना, तुम किसी पेड़ छत से नहीं निकले हुए हो ना, तो रूम में बैठे आराम से, तो पूरा का पूरा क्या है, और सब पूरा का पूरा तुम्हारा एग्जिस्टेंस फ्री है ना, फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर चीज है ना। सिमिलरली प्लांट्स का अगर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मिट्टी में उगेंगे ना वो, छत पे मतलब घर में तो वो एक कारण से उग गए, होने तो नहीं चाहिए था ना वहां पे, लेकिन क्योंकि वहां पे है तो वो दे आर नॉट फीलिंग, दे फीलिंग सफोकेटेड, है ना, इन द दैट वेरी एटमॉस्फेयर। Stiff with a long tramp goes shuffling under the roof like newly discharged patients। या मतलब shuffle करना मतलब क्या होता है, जब हम लोग कार्ड, सपोज हम लोग खेलते हैं ना, ऊनो खेलते हो या फिर यू प्ले कार्ड्स, है ना, यू शफल इट, भैया ऐसे से किए, फिर ऐसे से दिए, है ना, फिर ऐसे से करके, सो दैट्स नॉट जुआ एवरी टाइम, है ना। पीपल प्ले कार्ड्स, ऊनो खेलो, बच्चों वाली गेम होती है ना, उसमें वो भी खेल ना, सेम कलर्स को साथ में रख के एंड यू मैच इट, एंड ठीक है। सो नाउ हाफ डेज्ड का क्या मतलब होता है, हाफ डेज्ड and moving to the clinic doors। clinic doors यानी कि they are trying to move out of the hospital। clinic door यानी वो आए थे तो आईसीयू में भर्ती थे पेशेंट, है ना, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हैप्पीनेस थोड़ा बहुत तो है ना, और थोड़ा बहुत अंदर से वीकनेस, बिकॉज इतने दिन जो
हॉस्पिटल में रह ले, कितना भी एसी में रहे, वो तो हॉस्पिटल ही होता है, घर ही होता है, ठीक है। कितना भी कहीं भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी रह लो, हॉस्पिटल इज हॉस्पिटल ऑलवेज, है ना, वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, ठीक है। दैट वोंट गिव यू। सिमिलरली ये जो पेशेंट है, it is not बहुत एक्साइटेड, बट his excitement has been curtailed, है ना, कम हो गया है। किस वजह से हो गया है? लॉन्ग स्टे एट द हॉस्पिटल, है ना, in a ward or in a unit, right? I sit inside, doors open to the veranda. So poet is sitting where? अंदर बैठे हुए हैं, है ना, जैसे कि सपोज ये रूम है ना, एंड यहाँ पे गेट है और दिस इज द वरांडा, है ना। सो द पोएट इज सिटिंग इनसाइड, है ना, गेजिंग आउटसाइड, एंड दिस इज द वरांडा। वरांडा बेसिकली वो जगह होता है, घर के बाहर वाला। हाँ, सो चबूतरा भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, सुने हो नहीं होता है, ठीक है। मेनली आंगन के चारों तरफ जो एरिया होता है ना, उसको हम लोग वरांडा ही बोलते हैं, ठीक है। In which I think writing long letters. So the poet is sitting inside and he is writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. जिसमें कि मैं शायद ही ये पोएट ये मेंशन कर रहे हैं कि इस घर में ना पहले जंगल था, जो कि क्या हो गया है, अब नहीं रह गया। देखो पुराने जमाने के जो घर होते थे ना, है ना, तुम देखोगे जो बंगाली लोग का घर होता है, बंगालियों का जो घर होता है ना, उनके घरों में ना ऐसे पेड़ पौधे निकल आते हैं, ठीक है, तो और जंगल सा ही लगता है वो। क्यों एक्चुअली वो काफी पुराने हैं ना, और वो गारा वारा के बने हैं, वो सीमेंटेड नहीं है, उसमें गारा है, ठीक है। सो गारा होने की, गारा इज समथिंग ना मिट्टी में मिक्स करके होता है, हाँ, मिक्स करके। वो उनके घर भी देखोगे ना, काफी जैसे आजकल का नॉर्मल ये हाइट होता है ना, उनके घर का काफी हाइट रहता है, मतलब रूफ का काफी हाइट रहता है, उसकी वजह से ना वो ठंडा रहता है घर काफी ज्यादा, हाँ, ऊंचा, ये सीलिंग काफी ऊंचा रहता है, तो और दीवार काफी मोटे मोटे होते हैं, तो इस वजह से ना, और उसमें गारा दिया हुआ रहता है, तो उसमें उस वजह से ना घर में तुमको बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है, गर्मियों में। ये वाला जो है अजीब सा आश्रम है। हाँ, किसी इंजीनियर का घर है ना, रेड कलर का जो है, इंजीनियर या आईएएस कुछ ऐसे ही, तो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस करके ऐसे, हाँ, रेड कलर का जो घर है। So now, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. This night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Okay. So the feel when you are living in a house like that where there are plants, एक अलग सा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। हाँ, वो तुम फील करोगे कि सपोज घर के आंगन में ही 2-4 पेड़ है ना, और घर के दीवालों में से कुछ पेड़ निकल रहे हैं, आपकी गौरैया उसमें घोंसला बनाएगी, ठीक है, गौरैया सारे वेंटिलेटर्स में घोंसला बना देगी, गौरैया रहेगी भी उसमें, ठीक है। तो हाँ, स्पूकी लगेगा, डरावना लगेगा। जहाँ गौरैया रहती है ना, वहाँ पे तुमको स्पूकी वाइब्स नहीं आएगा। घर के दीवार से चिड़िया जब चिचिहाती है ना, लाइक गौरैया, इट इज सो सूदिंग, लाइक स्पैरो का नहीं मैम, जो पेड़ जो घर के दीवार सबसे निकलेगा वो स्पूकी वाइब से है। कौवा तुम्हारे यहाँ घोंसला बनाएगा। हाँ, हम स्पैरो की बात नहीं कर रहे। हाँ, समझ गए, डरावना वाइब भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी आएगा तो, हाँ, कभी कभी रात में ना वियर्ड से नॉइज आते भी हैं, पता नहीं कहाँ से आते, भगवान जाने। हाँ, है ना, बस the night is fresh, that means the night is very fresh, like what? Cake. Fresh like Cake. Newly baked dishes, or maybe like your juices, है ना, so it is fresh. like his head. हाँ,
fresh like you people's mind. Okay, now the whole moon shines in a sky still open. और पूरा ऐसे आसमान पूरा खुला है सामने में, कह सकते हो कि बरांडा के आगे आंगन होगा, है ना, एंड उनको पूरा आसमान भी रूम से दिख रहा होगा, ठीक है, और वहां से ही could gaze the entire sky जहाँ पे कि शायद आज पूर्णिमा होगा, है ना, पूर्णिमा फुल मून देखने में, है ना, छत। और देखो अभी तो हम बड़े हो गए, अगर उनके साथ हमारे कुछ बच्चे होते हैं ना तो वो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। लाइक आई वाज अ किड, नानी दादी के साथ आंगन में खटिया पे सो जाते थे और बहुत मजा आता था, बहुत खटिया पे सोने में। फिर वो दादी कुछ कहानियां सुनाएंगी एंड फिर तारे, नीम के पेड़ के पास जुगनू ऐसे ऐसे उड़ते हैं, वो बहुत सही लगता है, राइट। सो आजकल दिखता था, अभी भी जुगनू रहते हैं, अभी भी गांव का ऐसा ही दिखते हैं, कब दिखते हैं, क्योंकि अधिकतर घरों ने पेड़ काट दिए। द सीन इज दैट पेड़ होते तो जुगनू आते हैं, ठीक है। इन विच इज स्कार्सली, यहाँ नहीं आएंगे, गांव में डेफिनेटली, है ना। In which is scarcely mentioned the departure of the forest from the house. The night is where the whole moon shines in a sky. The smell of leaves and lichen and still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers. क्या हुआ? क्या हुआ? वायलेंस अरे आइलेंस बोले क्या हुआ? आप पूछ रहे हो केजीएफ देखें बस कौन हाँ देखें आप देखें रॉकी भाई पढ़ाने में देखें हम पढ़ाइए ना हम ना वापस करते हैं My head is full of whispers. You have अच्छा whispers दिमाग में पूरा उसके गुफ्तगू या फुसुर चल रहा है, फुसुर है ना, so ये फुसफुसा कौन रहा है उसके दिमाग में, right? So this is full of which tomorrow will be silent. Miss निशा फुसफुसा रही है, right? Which tomorrow will be silent. जो कल क्या हो जाएगा बिल्कुल साथ। कुछ लोग ओवर थिंकर्स होते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, ठीक है। So present. Which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its piece is flushed now in the crown of the tallest oak. Now, please pay attention to this stanza, okay? My head is full of whispers. बहुत सारी बातें चल रही जो कल को क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अभी वो लेटर क्या कर रहे थे, एक लेटर लिख रहे थे ना, the poet was writing a letter, है ना। Listen, the glass is breaking, है ना। The glass from where the tree was, वहाँ पे एक mention था ना earlier in the stanza that the leaves strain toward the glass, है ना। So making it no, ऑब्वियसली वो उधर की तरफ उनका दिशा हो रहा है, वो हरकत ऐसा कर रहे हैं ना कि अब उसकी वजह से क्या होगा, ग्लास टूट सकता है ना। The trees are stumbling forward. The tree क्या, stumbling means falling. Stumbling लुढ़कना को कहते हैं, ठीक है। The trees are falling forward into the night, है ना। That means कि रात में उसका existence क्या हो रहा है, freedom चाह रहा है। ट्री का जो एग्जिस्टेंस है रात के वक्त में क्या चाह रहा है, freedom that it has been caught up into the wall of that house, है ना। It is the roots are coming out from the cracks, है ना। The twig of the trees have been is facing what, pressure, exertion from the boughs, है ना। And the poet is silently noticing everything, है ना। He's writing a letter in his mind is having thoughts. नहीं, वो लिख भी रहे थे और वो ट्री को ऑब्जर्व भी कर रहे थे, ठीक है। और वो साइलेंस को, जैसे सपोज तुम रूम में बैठ के कुछ कर रही हो तो तुम पूरे एनवायरनमेंट को कैसे सक कर रही हो अपने अंदर, ठीक है। यू आर टेकिंग द
vibe all around inside you, ठीक है. So that is the sort of environment that the poet is in, है ना, कि वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ वो परसीव कर रहे हैं हर चीजों को, है ना, कि ऑब्जर्व कर रहे हैं और काफी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है. पेड़ जो यहाँ पे एक तो पहले ही स्टैंजा में हम बोलते हैं कि द ट्रीज आर मूविंग आउट, है ना, तो हाँ बोलते हैं ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, है ना, यानी कि ये जो पेड़ जो यहाँ से छुटकारा चाह रहा है उसको कहाँ जाने का मन कर रहा है, फॉरेस्ट में जाने का मन कर रहा है ना. दैट इज अ मीनिंग दैट द पोएट इज ट्राइंग टू से कि ये जो घर में उगाया है ना पेड़ अब कहाँ नहीं रह गया है, फॉरेस्ट में नहीं रह गया है. हाँ, है ना, वहां पे पेड़ नहीं है, वहां पे बर्ड्स है, वहां पे बाद बाकी जो है वो भी नहीं है, उनको शेल्टर नहीं मिल रहा है, वो उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है. लेकिन ये जो पेड़ है ना, ये जो घर में निकल आया, इसका घर में होना तो नहीं चाहिए था, इसको होना तो इसको जंगल में चाहिए था, है ना. इसी वजह से ये फ्रीडम सीख कर रहा है, इसको यहाँ से निकल के कहाँ जाना है, फॉरेस्ट में जाना है, ठीक है. इसी वजह से नहीं ना, तो फिर वहां पे उसको देखो, यहाँ पे भी वो चिड़िया लोग आके रह सकती है, ठीक है, स्पैरोज उस पे घोंसला बना सकते हैं, लेकिन उसका फुल डेवलपमेंट हुआ होना चाहिए, है ना. फुल डेवलपमेंट यानी अब जड़ किसी के यहाँ पे क्रैक आ गया है और इसमें से रूट्स ऐसे निकले हैं, ठीक है, यानी पेड़ भी यहीं कहीं होगा, ठीक है. कितना बड़ा घोंसला बनाएगा और कितने लोग इसमें रहेंगे, ठीक है. अगर बोझ भी निकल आया है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसका वेल ग्रोथ नहीं होगा, है ना. तो ज्यादा वो उसका जो काम है, पेड़ का क्या काम है, to give shelter to the animals, wild animals or maybe these birds, insects, है ना. वो काम तो वो फुलफिल नहीं कर रहा है, जो कि उसको जंगल में रहता तो वो भली बात ही फुलफिल कर रहा होता, है ना. जंगल क्यों होता है, इसीलिए होता है, तो वो क्योंकि नहीं कर रहा था उसको वो अपना प्लेस जाना. अब सपोज तुमको ही किसी डॉर्मेटरी छोड़ो, कहीं ऐसी जगह रख दिया जाए, सेल में कहीं ऐसा जगह डाल दिया जाए जहां पे कि तुम एकदम से फ्री नहीं महसूस करो, तो तुम चाहोगे ना कि तुम अपने दोस्तों से मिलो, तुम अपने घर जाओ. तुम्हारा काम है तुमको अपने दोस्तों को इंस्पायर करना है अपने वर्क के थ्रू, है ना. तुम किसी को कोई तुमको लुक अप टू करेगा, है ना, या तुम अपने स्टडीज में एक्सेल करोगे, कल तुम कुछ बनोगे, है ना, तुम उस फील्ड में कुछ योगदान करोगे. सिमिलरली